MCQ series, mix and match questions है from unit 1, unit 2, unit 3, all the units have been covered here. यहाँ पर mix and match questions है. Do try and solve these questions. These are important. This is part 1. Tomorrow I'm going to come with part 2 as well. There are going to be 2 parts. Then I'm going to discuss the sample paper. All right. Let's start. These are the best questions that have been jot out of your NCERT. जहाँ से questions, जहाँ से sample paper बन के आया है. हमें इधर उधर कोई सोर्स नहीं उठानी है, हमें कोई रेफरेंस बुक नहीं देखनी है. ऑल यू हैव टू डू इज वॉच माय वीडियो एंड सॉल्व द नोट्स. जो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें उनके आंसर्स पढ़ लो अच्छे से उन्हें. एंड सिंस इट्स एन एमसीक्यू सीरीज नाउ, अब एमसीक्यू सीरीज है तो इट विल बी इजियर फॉर अस, हमारे लिए अच्छा हो जाएगा अगर हमने ठीक से पढ़ा है. कंसेप्ट ज्यादा क्लियर करने हैं. अब हमें लर्निंग पे कम फोकस देना है. लर्निंग भी टू सम एक्सटेंट करनी है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट बहुत ज्यादा नेसेसरी है. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 1. सिंस दिस इज अ लाइव सेशन, आई कैन वेरी मच रीड योर डाउट्स. आई कैन रीड व्हाटएवर यू से, योर डाउट्स, एनीथिंग यू गाइस वांट टू आस्क, यू कैन आस्क मी देन एंड देयर. रेस्ट तुम लोग क्वेश्चंस करो, इन्हें सॉल्व करो अच्छे से. राइट. ए क्वायर्स अ पिस्टल. मैंने तुम्हें क्वेश्चन ऑलरेडी कराया हुआ है. जब एक पिस्टल लोड करके अपने पॉकेट में रख देता है, इज ए गिल्टी? ए इज नॉट गिल्टी. क्यों? क्योंकि उसने अटेम्प्ट नहीं किया है, उसने सिर्फ प्रिपरेशन तक गया है. अटेम्प्ट करता और वो चूक जाता तब क्या होता, तब गिल्टी होता. बट अटेम्प्ट ही नहीं किया है, अभी पिस्टल बस रखी है अपने पॉकेट में, शूट करने का ट्राई तो नहीं किया, अटेम्प्ट नहीं किया है. therefore he is not guilty. A is not guilty as he has made no attempt to kill B. C is going to be the right answer. ठीक है. इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कहूंगी that we have done. हम लोग ऑलरेडी वो क्वेश्चंस कर चुके हैं. इसको पढ़ो. One morning Sandeep and his friends Varun and Blair were hanging out at a coffee shop. Blair pointed out एक बहुत beautiful girl जा रही थी. The girl was sitting alone at the bar. Sandeep with an intention of befriending her, he wanted कि मैं इसको friend बनाता हूँ. He went up to her, introduced himself. Before he could say anything, girl ने क्या किया, वो drink फेंक दी उसके face पर. As she was suffering from heartbreak, वो heartbreak हो रखा था, उसको बहुत ज्यादा परेशान थी, उसका दिल दुखा हुआ था. ठीक है. And did not want to talk to him, Sandeep decides to sue the girl for battery. क्या वो sue कर सकता है गर्ल को बैटरी के लिए? वेरी मच कर सकता है. क्यों नहीं कर सकता? क्या दिक्कत है? जब फोर्स का यूज हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर बैटरी हो गई. गर्ल कैन नॉट बी ब्लेम. नो. Girl realized that Sandeep was flirting. No. Girl had a justification to throw. No. D is going to be the right answer. The girl has committed battery as therefore there was unlawful force, right? और जो act था intentional था, गलती से उसने नहीं गिरा है. Act intentionally उसने से फेंका है, so act intentional है और act commit भी हुआ है, unintentional force का use भी हुआ है. D is going to be the right answer, right? The girl has committed the tort of battery. Right? मैंने बताया है tort of battery, tort of assault, both are very important. You should know the difference between the two. All right? Bridge was caught red-handed while traveling without a ticket. And ये कौन सा है? This is compoundable offense, right? So he has to be in prison. नहीं. Can't pay a fine. He can pay a fine. Traveling ticket can all be traveled without a ticket. No. He has to pay a fine to the TT officer क्योंकि ये compound कर रहा है offense को. A is going to be the right answer. जब तुम पैसे दे रहे हो, छूट जा रहे हो imprisonment से, that is a case of compoundable offense. There are non-compoundable offenses as well. For instance, murder. Murder में, if you are doing murder, you can't pay them and just go away, right? You will be imprisoned for sure. So there are compoundable offenses, there are non-compoundable offenses, there are bailable offenses, there are non-bailable offenses. You should know the difference between the two and इनके क्या-क्या provisions रहते हैं. All right? So he has to pay a fine to the TT क्योंकि compoundable offense है. फिर defendants defendants who are employees of the Municipal Corporation opened a manhole in the street in the evening. They left the manhole open and unattended, just covered by a canvas shelter and surrounded by warning lamps. The plaintiff, an 8-year-old boy, took one of the lamps into the shelter and was playing it there when he stumbled over and fell into the manhole. A violent explosion followed and the plaintiff suffered burn injuries. Defendants are they liable? Are they not liable? देखते हैं, options देखते हैं. They are not liable because the injury to the plaintiff is not foreseeable. Liable because they should have completed the work before they left. They are liable. They are very much liable अगर देखा जाए because they have acted unreasonably. Don't you know अगर तुम manhole open करके छोड़ के जा रहे हो, just एक उसके ऊपर canvas रख के जा रहे हो, क्या कोई इंसान नहीं गिर सकता है उसमें? Definitely गिर सकता है. तो इसमें क्या होगा, उन्होंने unreasonable act किया. This is an act of negligence. ये negligence का act है, you guys know.
ठीक है। तो नेग्लिजेंस जैसे डोनोवो से स्टीवेंसन हमने पढ़ा था, सिमिलरली इन्होंने एक्ट अनरीजनेबल रहा है, देयरफॉर दे आर लायबल बिकॉज दे हैव एक्टेड अनरीजनेबली। अनरीजनेबली उन्होंने एक्ट किया है, फोर्सिएबल था कि कोई ना कोई इसमें गिर जाएगा, देयरफॉर इट्स डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। This form of discharge of contract takes place when one of the party realizes to perform their part in this event the party, देखो monetary compensation की बात कर रहे हैं, जहां भी monetary compensation की बात होगी क्या है आंसर, damages है, मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, which of the following disputes can be resolved through mediation, mediation के थ्रू matrimonial disputes, neighbor disputes, नेबर ईजमेंट राइट्स, ये सब डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो सकते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स इज द राइट आंसर। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस, यूनिट 3 में मैं तुम्हारे साथ कवर कर चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। A was sitting on a chair reading a book, his friend B decided to play a practical joke on him, accordingly he pulled the chair under him, as a result A लैंड होगा, ठीक है, फोर्स का यूज हुआ, इंटेंशनल काम हुआ है, बैटरी रहेगा, B's act amounts to बैटरी, ठीक है। अगर वो सिर्फ डराता और गिरता ना तो वो असॉल्ट होता है, क्योंकि इसे एक फियर एप्रीहेंशन बनाया, सिंस इसने चेयर पुल कर दी है और बैटरी कमिट हो गई है, फोर्स का यूज हो गया है, सो B's act amounts to बैटरी, राइट। देन रोहन वांट्स टू ऑप्ट फॉर अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जहां उसे क्या डिस्कस करना है ट्रूली लास्टिंग पीस करनी है, अंडरलाइंग अ डिस्प्यूट। अगर हम ये लाइन देखें, ये लाइन एग्जैक्टली एनसीईआरटी से उठाई गई है और ये लाइन क्या है, मीडिएशन है। मीडिएशन ट्रूली लास्टिंग पीस क्रिएट करता है, इट हेल्प्स for this dispute, जो dispute की ये लोग बात कर रहे हैं, the dispute that they are talking about, that he wants to solve a problem underlying dispute and create truly lasting peace, identify करना है, mediation इसका आंसर है। NCERT की लाइन अगर तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छे से पढ़ रखी है तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, this will be very very easy for you। टिपिकल ड्यूटीज क्या होती है ombudsman की, उसको क्या करना है, लोक अदालत पे सेंड करनी है, आर्बिट्रेशन नहीं, मेन ड्यूटीज होती है कि उसको मीडिएशन के थ्रू प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है, therefore C is going to be the right answer। पूछ सकते हैं कौन सा दिस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यूज होता है इसमें, राइट। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कौन सा, ADR यूज होता है, मीडिएशन यूज होता है, ओम्बड्समैन मीडिएशन यूज करता है। राकेश वाज कॉट जंपिंग द ट्रैफिक सिग्नल and as a punishment he sought to be imprisoned, ठीक है। however instead of being imprisoned he could pay a fine, तो फाइन दे दिया, कंपाउंडेबल ऑफेंस है, फाइन नहीं दे सकता था, नॉन कंपाउंडेबल हो जाता, ठीक है। कंपाउंडेबल ऑफेंस मींस जाना तुम्हें जेल था, अगर तुम बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे हो तो वो तुम्हें जेल होनी चाहिए, पर जेल नहीं होती, पैसे दे के छोड़ देते हैं। सिमिलरली रेड लाइट अगर स्किप कर रहे हो, रेड लाइट अगर जंप कर रहे हो, रेड लाइट होने के बाद भी तुम अगर ड्राइव कर रहे हो, ये क्रिमिनल केस हो सकता है तुम्हारे अगेंस्ट, तुम्हें इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, बट तुम फाइन देकर छुट जाते हो। तो ये कौन से केस होते हैं, ये कौन से ऑफेंस होते हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं। फिर कविता गेव पोजेशन ऑफ अ फार्म हाउस फॉर सम पीरियड, तो लेसर लेसी हो गया, ठीक है, लेसी लेसर का ही वो होगा, इनके बीच में रिलेशन होगा, लीज होती है सम पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो बात समझ आई। सेल नहीं होती है, सेल तो कंप्लीट हो जाती है। द सैलरीज एंड एमोल्यूमेंट्स जो होते हैं कहाँ से आते हैं, ये कंसोलिडेटेड फंड से आते हैं, ठीक है। जजेस के पता होने चाहिए, ये पता होना चाहिए तुम लोग को। कंसोलिडेटेड और कंटिजेंसी में फर्क समझना, कंटिजेंसी फंड तब यूज होता है जब कोई डिजास्टर हो जाए या कोई अनएक्सपेक्टेड चीज आ जाए, बट कंसोलिडेटेड फंड कब यूज होता है, कंसोलिडेटेड फंड यूज होता है इन द केस ऑफ एमोल्यूमेंट, सैलरीज, जजेस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनके लिए यूज होता है। Residents of PV colony have been paying for civic facilities and during monsoons roads developed cracks और pit holes हो गए थे। Residents requested कि रिपेयर करो रोड्स को, however municipal department जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इतने रिमाइंडर्स दिए गए बट उसने सब इग्नोर कर दिया। तो कौन सी रेट इशू हो सकती है, रेट ऑफ मैंडेमस। अब इन सबके रेट्स के मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, तो कमांड दे रहे हैं भाई इनकी रोड सही करो, ठीक है। तो हैबिस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, टू हैव अ बॉडी, पुअर वारंट टू बाय व्हाट अथॉरिटी, सर्चुरारी, प्रोहिबिशन, ये सब जो है ये सब तुम्हें रिट्स पता होना चाहिए। रिट्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, रिट्स के क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन है, मनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बात कर रहा था राइट टू लाइफ और लिबर्टी की, तो ए का मान हो जाएगा। एमएच हॉस्कॉट में बात हुई थी जुडिशियल जस्टिस की, विद प्रोसीजरल इंट्रिकेसीज, लीगल सबमिशन, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस, ये सब बात हुई थी एमएच हॉस्कॉट, तो ये फोर्थ हो जाएगा। कॉन्कन रेलवेज कॉर्पोरेशन में बात हुई थी कमर्शियल सेंस की, थर्ड हो जाएगा। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मैंने बताया था ये किसके लिए यूज हुआ था, मीडिएशन में हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो है दे हैव बीन एक्सक्लूडेड आउट ऑफ स्कोप ऑफ मीडिएशन, रिप्रेजेंटेटिव सूट्स, क्रिमिनल ऑफेंसेस, केसेस, तो ऐसे पूछ सकते हैं, ऐसे टेबल दे सकते हैं, तो ये हमें करना है ए का मान, ये जैसे मैंने बताया। अब ये देखो ऑप्शंस दे रखे हैं, ए का मान किस में है, ए का मान सिर्फ इसमें ही है, तुम्हें कोई भी एक समझ आ जाएगा, एक दो जो में क्लियर हो जाएंगे तो तुम
आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर तुम्हें डी का 3 पता है तो डी का 3 इसका भी है, डी का 3 इसका भी है, बट ए का 1 डी का 3 नहीं है, बेसिकली डी का 2 है। इन केस डी का 3 हो तो तुम्हें इनमें से ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, बट ए का 1 सिर्फ बी का ही है, सो बी इज गोना बी द राइट आंसर। ए का 1, बी का 4, सी का 3 एंड डी का इज 2, राइट। चलो ये देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ द थर्ड पार्टी इन कंसिलिएशन। कंसिलिएशन में वो काम क्या करता है, देखो फैसिलिटेट करने का काम करता है, इट एड्स यू, फैसिलिटेट यू, बट आल्सो गिव यू प्रॉपर सॉल्यूशन, ठीक है। तो सजेस्ट करता है एप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस, बट मीडिएटर नहीं करता है, कंसिलेटर करता है। कंसिलेटर इंटरवीन करता है, बियॉन्ड रोल ऑफ फैसिलिटेशन होता है। मैंने तुम्हें डिफरेंस ऑलरेडी समझा रखा है। सुधीर ए कॉलेज स्टूडेंट फॉलोज कृति हिज क्लासमेट, उसे अनवांटेड मैसेजेस भेजता है, तो ये क्या हुआ, अनलॉफुल हरासमेंट का केस है। डायरेक्टली एनसीईआरटी का एग्जांपल है, अनलॉफुल हरासमेंट है, उसकी फोटोज क्लिक कर रहा है विदाउट हिज परमिशन, विदाउट हिज हर परमिशन। कोई शादी में जाकर तुम पिक्चर क्लिक कर रहे हो, किसी की प्राइवेसी इंट्रूड कर रहे हो, तो वो प्राइवेसी इन्वेजन होता है, ठीक है। बट ये अनलॉफुल हरासमेंट का केस है व्हेन यू आर सेंडिंग अनवांटेड मैसेजेस, ठीक है। अगर प्राइवेसी इन्वेड तब होती है जब तुम छुपके से फोटोज क्लिक कर रहे हो और ये सब उसके बिना परमिशन के ये सब काम कर रहे हो। फर्स्ट इंडियन लेडी वकील कौन थी, कॉर्नेलिया सौरभ जी थी, ठीक है। इनको थोड़ा फेवरिज्म मिला था, फेवरिज्म इसलिए मिला था क्योंकि वो इंग्लैंड से थी, इनका इंडियन ओरिजिन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेग्लिजेंस, क्या ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेग्लिजेंस, क्या है, ठीक है। कौन कौन से करेक्ट है, डिफेंडेंट को एक लीगल ड्यूटी होती है, इट वाज ओड, ही कमिटेड ब्रीच ऑफ सच ड्यूटी, 1 2 3 करेक्ट है, 1 2 3 4 भी या 1 2 3 सिर्फ 1 2 3 4 देख लेते हैं, दैट द ब्रीच ऑफ सच ड्यूटी वाज डायरेक्ट एंड प्रॉक्सिमेट कॉज, हमने कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो ए करेक्ट आंसर होगा। प्रॉक्सिमेट कॉज, ये कुछ लाइंस लिख कर आ जाए, हमें नहीं, हमें 3 चीजें होनी चाहिए। ओड अ ड्यूटी, दैट ड्यूटी हैज बीन ब्रीच्ड, अब ब्रीच होने की वजह से कोई हार्म हुआ है, इंजरी हुई है, सो 1 2 3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, राइट, 1 2 3 आर करेक्ट। वैसे ही प्रॉक्सिमेट कॉज वाला का तो बिल्कुल लीगल सेंस में जाओ तो ये भी होता है, प्रॉक्सिमेट कॉज वाली लाइन भी एग्जिस्ट करती है, बट वी डोंट हैव टू लर्न दिस, हमें सिर्फ 1 2 3 करेक्ट मानने हैं। दिस राइट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड टू द अक्यूज्ड कि नो पर्सन कैन बी अक्यूज्ड टू बी अ विटनेस। सेल्फ इंक्रिमिनेशन बोलते हैं, 23 आर्टिकल से कवर करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है। राहुल फैसिलिटेट कर रहा है एडीआर को, in which neutral third party हो रही है, which facilitates in achieving acceptable voluntary agreement more formal than negotiation, जहाँ भी word more formal than negotiation आ जाएगा, mediation आ जाएगा उसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, लैंडमार्क जजमेंट, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये तो तुम्हें पढ़ना भी नहीं चाहिए, ऊपर से एक ग्लैंस में तुम्हें आंसर पता होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो बात करता है वो बात करता है केशवंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड 1973 का केस है। ऑफिस ऑफ सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न है, बिल्कुल फॉल्स है, कल ही हम पढ़ रहे थे कि रूल से गवर्न है, रूल्स हमें याद नहीं करना है, लॉ सर्विसेज ऑफिसर और कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऐसे जो होता है, लॉ ऑफिसर्स कंडीशन ऑफ सर्विसेज रूल्स जो थे 1987 के जो भी रूल्स थे वो हमें याद नहीं करना है, बस पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न नहीं करता है सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, बट अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल करता है गवर्न, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द एसेंशियल अग्रीमेंट्स ऑफ क्राइम आर, दो ही होते हैं, मेंस रे एक्टस रे, और उधर मत देखना क्या जरूरी होता है, बस मेंस रे और एक्टस रे जरूरी होता है। अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज मेड वॉलंटरी एंड विदाउट कंसिडरेशन इज कॉल्ड गिफ्ट। गिफ्ट किससे गवर्न होता है, सेक्शन 122 से हो सकता है, वर्स्ट केस पूछ सकते हैं, वैसे गिफ्ट का सेक्शन नहीं पूछा जाएगा, सेक्शन 122 है ना, हाँ ठीक है। हु इज द चीफ लीगल एडवाइजर, देखो चीफ लीगल एडवाइजर अब तुम पढ़ोगे, चीफ लीगल एडवाइजर तो अटॉर्नी जनरल होता है, पर पूरा पढ़ो, स्टेट का पूछा है, स्टेट का एडवोकेट जनरल होता है, रिप्रेजेंट स्टेट 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 स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर जो रिप्रेजेंट करता है वो अटॉर्नी जनरल होता है, स्टेट गवर्नमेंट को एडवोकेट जनरल रिप्रेजेंट करता है। पूरा क्वेश्चन पढ़ना, ट्रैप में मत फंस जाना। आई एम एंडिंग दिस सेशन, लाइव सेशन खत्म हो रहा है, 25 बेस्ट क्वेश्चंस आज कवर हुए हैं, 25 बेस्ट क्वेश्चंस कल कवर होंगे। डू दीज क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, दे गोइंग टू हेल्प यू immensely हेल्प करेंगे तुम्हें, and you will come out with flying colors. I will make that sure. I'm ending this session here. Thank you so much for watching this video, and कल मिलते हैं. Okay, take care. 1 o'clock tomorrow. All right. Bye bye.